A very good morning to all of you, class 11th. So today we are going to start our history class. Here is your history book, which is of HM publication. I hope you can see the picture clearly. This book is of HM publication, subject history, class 11th. Now today we are going to start our syllabus. But first of all, before starting the chapter, let me tell you something about history. So what is history? See, history is a mirror of human civilization and culture which reflects a real picture of the successes and failures, rises and downfalls before the coming generations. The term history को हम हिंदी में कहते हैं, we call it इतिहास, okay, which means it actually happened, so जो हो चुका है. The English term history से हम ये समझते हैं कि जो चीज़ें हो चुकी हैं. The past time. The English term for it are history and annals, etc. Practically, the essence of men's achievement till date is known as itihas or history. The study of history teaches a man not to repeat the mistakes of past. History का जो स्टडी है वो हमें यही बताता है कि हमको पास्ट का मिस्टेक को क्या करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए. द मेन फंक्शन ऑफ हिस्ट्री इज़ टू रिवील द फैक्ट्स एंड द ट्रूथ. हिस्ट्री का मेन फंक्शन क्या है, वो ये बताता है क्या फैक्ट्स थे, वो रिवील करता है फैक्ट्स और ट्रूथ को. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें पास्ट के बारे में, पास्ट की चीज़ों के बारे में, जो भी इंसिडेंट हुए हैं सब के बारे में बताता है, द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट्स एंड ऑल. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर first chapter, which is from the beginning of time, Stone Age cultures. Our first chapter is from the beginning of time, Stone Age culture. In this chapter we are going to study about the Stone Age. Stone, which means patthar in Hindi. So the advent of human being and human civilization on earth is very interesting story. The advent यानी कि human being का आना, कहाँ पर आना, अर्थ पे. human being और human civilization का अर्थ पे आना क्या है, is very interesting story. Most of the historians opine that the earth is around 460 crore years old. हमारे मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस जो थे वो ये अपाइन करते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कितने साल पुराना है, जो हमारा अर्थ है इज़ अराउंड 460 करोड़ ईयर्स. अर्थ जो है, पृथ्वी हमारा अर्थ 460 crore years old है. The evaluation is its crust shows 4 stages. The fourth stage is known as Quaternary. It is divided into 2 phases. There are 2 phases, which is most recent and present, Pleistocene and Holocene. So Pleistocene phase lasted between 20 lakh and 10,000 years and the Holocene phase began about 10,000 years ago. ये दो आपके क्या हैं, phases हैं, Pleistocene and Holocene. प्लाइस्टोसीन जो है वो बिटवीन 20 लाख एंड 10,000 ईयर्स, और होलोसीन क्या है आपका फेज़, वो कब शुरू होता है, बिगिन अबाउट 10,000 ईयर्स अगो. फर्स्ट ऑफ ऑल द शील्स, जेली फिश, क्रैब लाइक क्रिएचर्स एंड सी लिलीज केम इनटू एग्जिस्टेंस. सबसे पहले ये सारी चीज़ें आई फेज बाय फेज. फिशेस, देन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड फाइनली मैमल्स अपीयर्ड ऑन अर्थ. उसके बाद जो है तो सबसे पहले आपके शेल्स आए, जेली आई, फिश, क्रैब आया, कुछ क्रिएचर्स आए, सी लिलीज़ वगैरह. उसके बाद क्या आया, उसके बाद फिर फेज़ बाय फेज़ फिशेज़ आई, एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल्स आए, उसके बाद फाइनली मैमल्स अर्थ पे दिखे. यहाँ पे बता रहे हैं अर्थ पे कैसे स्टार्टिंग हुआ, अर्थ कितना पुराना है, क्या क्या चीज़ें आई, फिर कैसे फेज़ 2 फेज़ आए, उसमें क्या क्या आया. एट लास्ट मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस. और सबसे बाद में क्या आया आपको, मैन आपका आया एग्जिस्टेंस में. एडवेंट ऑफ मैन ऑन अर्थ. अब मैन अर्थ पे कैसे आया. In the opinion of most of the historians, human existence on Earth's surface appeared perhaps 56 lakh years ago. ये 56 lakh ago का बात है. यहाँ पे हम बात करें मैन अर्थ पे कैसे है उसकी. After it, several forms of early men appeared and later became extinct. The earliest human fossils that have been found in Africa date back to about 42 lakh years. देखिए आपके जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स रीमेन्स होते हैं और इम्प्रेशन ऑफ ये कुछ प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रिजर्व्ड इन पेट्रीफाइंड फॉर्म एज अ मोल्ड और कास्ट इन रॉक्स, जिसको हम आप कह सकते हो हिंदी में हम कहते हैं इसको जीवाश्म. ठीक है, ये कुछ रीमेन्स आप कह सकते हो, रीमेन्स टाइप के होते हैं.
So द अर्लीस्ट मैन वॉज शॉर्टर इन हाइट. अब यहाँ पे बता रहे हैं जो भी अर्लीस्ट मैन थे ह्यूमंस थे कैसे थे, तो वो शॉर्टर हाइट में कम थे एंड हैड अ स्मॉलर ब्रेन. उनका दिमाग भी कैसा था, छोटा था. मैन रीच्ड हिज प्रेजेंट फॉर्म अबाउट 50,000 years ago. The fossils of different periods and stages of human development have been found mostly from Africa, China, Java, Sumatra and southern Europe. In India, the only early human fossils has been found at Nora in Narmada Valley. In the opinion of the experts, the estimated cranial capacity of this fossil is equal to that of Homo erectus. Some scholars feel that it may be belong to the last phase of Homo erectus or an archaic Homo sapiens. सी अब यहाँ पे ये बता रहे हैं किस तरीके से मैन अर्थ पे आया, कितने साल पहले आया, पहले के मैन जो होते थे अर्लीस्ट मैन वो कैसे होते थे हाइट में, और किन किन जगह पे क्या क्या मिला, ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हुआ. Human development का stages. From stone period we mean that period of human history when the very first important phase of human life began and develop. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपका stone period जो होता है उससे हम क्या समझते हैं, एक ऐसा period, that period of human history when the very first, यहाँ पे सबसे पहला important phase आया किस चीज़ का, human life की शुरुआत हुई और उसका development हुआ. At first when men appeared on the earth there was a little difference between him and the other animal. जब सबसे पहले men दुनिया में आए या अर्थ पे आए आप कह सकते हैं, तो उनमें और अदर एनिमल में थोड़ा सा डिफरेंस पाया गया. He lived amongst the animal and behaved like them. लिटिल डिफरेंस हमको मिला. हाउएवर मैन वॉज गिफ्टेड विद ब्रेन, पावर ऑफ स्पीच एंड पावर ऑफ थिंकिंग. और थोड़ा सा जो फर्क था वो किस चीज़ का था, मैन गिफ्टेड था ब्रेन से, पावर ऑफ स्पीच से वो बोल सकता था, पावर ऑफ थिंकिंग वो सोच सकता था. ऑल दीज 3 फैकल्टीज मेड हिम सुपीरियर टू एनिमल. और यही 3 चीज़ें उसको एनिमल से क्या बनाती हैं, सुपीरियर बनाती हैं. और यही और उसमें और एनिमल में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है एक्चुअली. सो दीज आर द थिंग्स विच different, they're which make superior men to animals. We come to know of this first phase of human history from the stone tools and implements of that period. Hence this phase is known as the Stone Age. So I hope you can understand about the Stone Age clearly. I hope you can understand the meaning of a Stone Age, कि Stone Age क्या था, उसमें क्या चीज़ें आई, उसको हम क्यों जानते हैं. पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन. द हिस्टोरियंस इन ऑर्डर टू मेक द स्टडी कन्वीनियंट डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया इनटू 3 पीरियड्स में इन्होंने डिवाइड किया. ओके, नेमली प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड. यहाँ पे 3 पीरियड हमको हिस्ट्री के मिलते हैं, प्री हिस्टोरिकल, proto-historical and historical. The period for which no written material is available except some stone and bone implements and tools, some other archaeological materials etc. for collecting data is called prehistorical period. ठीक है. Man was not completely civilized during this period. Prehistorical में क्या था आपके, यहाँ पे नो रिटर्न मटेरियल, कोई भी रिटर्न मटेरियल अवेलेबल नहीं था एक्सेप्ट कुछ स्टोन्स थे, कुछ बोन थे, टूल्स थे और कुछ अदर आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स हैं. ठीक है, ये था हमारा प्री हिस्टोरिकल. मैन वॉज, यहाँ पे मैन क्या था, कंप्लीटली सिविलाइज नहीं था. द प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इज दैट पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री फॉर विच रिटर्न एविडेंसेस आर अवेलेबल. अब प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड क्या था, जिसमें कि हमको रिटर्न एविडेंसेस अवेलेबल थे, मिले थे, बट ईदर दे आर नॉट वेरीफाइड, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं थे. और इट इज़ नॉट ईजी टू ड्रॉ मीनिंग ऑफ देयर डिफिकल्ट स्क्रिप्ट, और इतना आसान भी नहीं था कि हम उनके उस स्क्रिप्ट का मीनिंग निकाल सकें. द पीरियड फॉर विच वेरीफाइड रिटर्न सोर्सेज आर अवेलेबल इज नोन एज द हिस्टोरिकल पीरियड. ऐसा पीरियड जिसमें हमको वेरीफाइड रिटर्न सोर्सेज मिले उसको हमने क्या बोला, हिस्टोरिकल. यानी 3 पीरियड थे. एक पीरियड ऐसा था जिसका कोई भी रिटर्न मटेरियल हमको नहीं मिला, सिर्फ कुछ स्टोन्स और बोन्स मिले, इसमें मैन सिविलाइज्ड भी नहीं था, इस पीरियड को बोला प्री हिस्टोरिकल. उसके बाद हमको कुछ सोर्सेज एविडेंसेस तो मिले लेकिन वो वेरीफाइड नहीं थे, उसको हमने बोला प्रोटो हिस्टोरिकल. और फिर उसके बाद हमको कुछ रिटर्न सोर्सेज मिले जो कि वेरीफाइड थे और उसको हमने बोला हिस्टोरिकल पीरियड. सो दीज आर द 3 periods of ancient history. So this is the periodization in history. I hope you can understand about these topic easily. So that's all for today. Thank you so much.